ठीक है. So if I talk about this mock, the highest marks as of now is 31 in these 50 questions. So that's your highest as of now. I don't know that because this is day one. I don't have the scores from other branches, online people. So जितना मेरे को पता है 31 the highest as of now. ठीक है. So this time I told you that your attempt is not important. Your accuracy is more important. So accuracy percent wise, if they are out of this class, 3 people have got around 80%. 30% of the people have got accuracy above 80, which is a very good number. Fine. So other people, but the problem is 4 people in this class have got accuracy less than 50%. That is my problem. ठीक है, ये नहीं चलेगा. Your accuracy have to be high, because the problem is even if you do 200 questions, if your accuracy is less than 50%, you will expect 95 to 80 marks, and that will not get you anywhere. इतना करने के बावजूद अगर स्कोर कम आ रहा है, it's not done. Fine. So next few weeks का your target is building your accuracy. Fine. So in fact I am the only coaching institute वाला और a teacher who will recommend you कि attempt कम करो for next few days, few weeks, because build your accuracy. एक बार accuracy बन गया वो fall नहीं करेगा. ठीक है. So your first task is to build your accuracy. कम क्वेश्चन करो चलेगा, with more accuracy. Fine. तो आज घर जाके पहला काम आप करो. That first thing you have to do today is that you have to solve the other questions. Fine. ये चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है. Suppose out of 200 question you did 140 question, बाकी का 60 क्वेश्चन छूट जाता है. तो spend remaining time घर जाके आराम से extra time on that to solve the remaining questions, so that you can understand and laugh on yourself the question which were easy but you could have done जो किया नहीं. समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? So there will be few questions which are very easy लेकिन तुमने देखा ही नहीं. That is same. ठीक है, वो क्वेश्चन छूटना चाहिए जो नहीं आता था. चलेगा. So those 40% in this class, if the 40% this class, obviously everyone in the same situation, there are 40% students who have still accuracy is less than 50%. नहीं चलेगा. Your accuracy have to be 80. बढ़ाओ उसको, और होगा, आराम से होगा. It'll take some time but you will get into the feel of increasing your accuracy. Fine. So that's the first thing I want to do. Okay, then moving on to the question solving. Abhi is too early for that, but gradually I want you to start making a matrix of 1 by 5, 3 by 5, 5 by 5. 1 by 5 मतलब all those questions where you get 1 by 5 marks. तो 5 क्वेश्चन किया, you get 1 question right. 5 क्वेश्चन किया, 3 right. 5 किया, 5 right. For example, your RC was 3 by 5 और ठीक है 3 by 5 this is RC. ठीक है, तो RC तुम करी क्यों रहे हो पहले? If my RC is 3 by 5, I'll try to do RC toward the end. Fine. Verbal reasoning या visual reasoning, if I'm weak at that area, उसको लास्ट में करो. ठीक है, और एटलीस्ट वो टॉपिक पहले उठाओ जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया है. ठीक है. सो स्टार्ट मेकिंग अ चार्ट, कीप ऑन एडिंग द वैल्यूज, डोंट बैंक ऑन 1 मॉक, बट ऑन एन एवरेज 10 मॉक्स के बाद विल सी व्हाट इज़ योर स्ट्रॉन्ग एरिया, एवरेज एरिया, वीक एरिया. बिकॉज द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन यू शुड नो कि ये करना है कि नहीं करना है. एक अंदर से आवाज़ आना चाहिए. बिकॉज सीट में यू डोंट हैव टाइम टू थिंक. उधर बार भागोगे तुम, तुम्हारे अंदर के जानवर को जाना पड़ेगा वहाँ पे. ठीक है. ऑलराइट. सो इफ आई स्टार्ट विद दिस थिंग, इफ आई एम सॉल्विंग दिस पेपर आई विल डू 1 to 5 बिकॉज देर ऑलवेज 10 क्वेश्चन ऑन क्रॉस पैसेज. तो ये ऑलवेज ईजी होता है. देयर वाज नन ऑफ द क्वेश्चन वाज बियॉन्ड द लेवल. ये सारा क्वेश्चन डूएबल था. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक एट द फर्स्ट वन, ट्यूशन फीस हैव dash but the sky is not the limit. That's the case. Tuition fees have obviously gone up but sky is not the limit, so skyrocket it. Fine. So these 10 words were easy. There are always, every year there are 10 marks जो तुम्हें प्लेट में डाल के दिया जाता है कि लो भैया 10 मार्क्स तो सीट में लेके आओ, और these 10 marks. Fine. Then the moment I look at the second set, now this set will take some time. ना मेरा ये strong area है, plus read करने में will take me more time. So I would have done this topic towards the end. यार 50 क्वेश्चन को तुम मैनेज कर सकते हो कि ये बाद में करना है कि पहले करना है. तो इफ़ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मे बी यू हैव डन, बट आई माइट बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन टुवर्ड्स द सेकंड हाफ. पहले वो क्वेश्चन उठा लो जो तुम्हें आते हैं. ठीक है. सो दैट वाज द फर्स्ट पेज का एनालिसिस. अदरवाइज आई डू दिस क्वेश्चन. सो एक बार कर लेते हैं, चलो अभी कर रहे हैं तो सॉल्व कर लेते हैं. यू टू फाइंड द राइट आंसर. दिस इज अ पैरा कैम्बल का क्वेश्चन. सो यू टू राइट द फर्स्ट आइडेंटिफाई द राइट ऑर्डर, देन सॉल्व इट. So if I would have solved this question, the right order is first statement is 3, फिर 5, 1, 6, 4, 2. So third statement was number 1, then number 5, number 1, number 6, number 4,
Number 2, that's the right order in which you have to identify yourself while solving the paper. ठीक, I would have avoided this question. मैं पहले नहीं करता, अंग्रेजी मेरी ऐसे ही थोड़ी वीक है तो मैं ये क्वेश्चन बाद में करता. पहले बाकी क्वेश्चन देख लो कि बाकी में है क्या. I'm not saying this is a difficult question, it's a doable question, but for me it's gonna waste my time to solve this question, so I'll do it towards the end. Alright, on second page these two questions were very easy, 64, 65, fine, but the problem is 64 question जो हमेशा 1 मार्क का आएगा, it's gonna waste your time. इसमें टाइम लगेगा लेकिन एक्यूरेसी आएगा. सही. And there are a lot of ways to solve this question. The way which I follow, I'll tell you that way, which is the easiest method to solve this question. A plus B mean A is a brother of B. So all you have to do is you have to write on the top of that. Plus मतलब brother. Plus मतलब brother. So just mark out the keyword. Otherwise एक को you have to check बाबा जाके. ठीक है. Sister A minus B मतलब sister. Minus मतलब sister. S and then multiply मतलब father. तो F. Now it will not take you more than 5 seconds to solve per question. आपको निकालना क्या है? C, which of the following says C is the son of M. तो मतलब M ऊपर आएगा, C उसके नीचे आएगा. चलेगा? M is the C is the son of M. ठीक है? चलेगा तो M ऊपर जाएगा. Now if you look at the first one, M is a sister of N. गया? ठीक है? And then N is the father. C is the father of N. तो father आ गया, तो उल्टा हो गया ये तो. पहला स्टेटमेंट गया. Second statement, F is a sister of C. C is a brother of N. N is father of M. तो M उल्टा नीचे आ गया ये. Rather than going up, M is coming down. Out. 5 seconds per question. Last option, M multiply is father. M multiply क्या था? Father. M is father of N. N is sister of C. C is father. C is brother of this thing. So the moment I know this thing, that's my answer. N is father. 5 seconds, 20 seconds for this thing, and 10 seconds to write down MSP. तो 30 seconds, 40 seconds के अंदर तुम्हारा full marks. यार ये छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें करना पड़ेगा. Every question में if you save only 10 seconds out of, अगर तुमने 150 क्वेश्चन किया, you saved 1500 seconds, which is almost 15 marks, 15 minutes. बहुत टाइम हो गया जो. ठीक है, तो हर you have to identify the shortcut in every question. मार्क करने के लिए शीट you have to kept with you. Look at the way he does. इसका शीट साथ होता है. क्वेश्चन सॉल्व किया, वहीं के वहीं साथ में मार्क करते जाओ. What you doing, what normally people do, ये क्वेश्चन सॉल्व किया, they mark it here. तुमने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया, फिर OMR शीट में टाइम वेस्ट किया, यू आर डूइंग डबल एफर्ट. द मोमेंट यू नो आंसर इज 4, कैन यू डायरेक्टली मार्क देयर रादर देन मार्किंग हियर. चलेगा? सेव योर टाइम. प्लस नो मोर एक्स्ट्रा शीट्स अलाउड. यू हैव टू मार्क ऑन द पेपर. जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना है, दैट हैव टू बी डन ऑन द पेपर इटसेल्फ. नो रफ वर्क. रफ वर्क लास्ट में होगा पीछे. हु विल गो टुवर्ड्स द एंड, सॉल्व द पेपर, अगेन कम बैक. यार तुम्हें काफ़ी स्पेस दिया यार. देयर इज इनफ स्पेस गिवन टू यू टू सॉल्व द क्वेश्चन. इससे ज़्यादा स्पेस तुम्हें लग रही है तो देन यू आर डूइंग द रॉन्ग क्वेश्चन. देन वो क्वेश्चन छोड़ दो. ऑब्वियसली दिस स्पेस इज इनफ. ऑन एन एवरेज देयर विल बी 5 क्वेश्चन पर शीट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन डुएबल था. नेक्स्ट वाला वॉज अगेन डुएबल. ये तुम्हारा मेन स्केरी पार्ट है. डेफिनेटली ट्रू, प्रॉब्ली ट्रू. तुम जो मर्जी कर लो, इसमें एक्यूरेसी आना इज़ वेरी डिफिकल्ट. So I'll keep, that's why I'm keeping 10 workshops on verbal reasoning as well, because वो तुम्हारा main area of improvement है. टाइम लगेगा obviously, but accuracy हाई आएगा अगर आया तो. ठीक है, I'm not saying यार कुछ तो करोगे पेपर में. सब छोड़ोगे तो करोगे क्या फिर? वर्बल छोड़ दिया, विजुअल छोड़ दिया, फिर बचा क्या? Okay, we'll solve one question. If there is a statement given to you, the serious accident in which a person was run down by a car yesterday, read the question again, has again focused attention on the most unsatisfactory street lighting. So we're talking about the street lights. No one expected roadside to be provided same standard as the main road, but there should be some lights. That's what we're talking about here. And it will only be a question of time before there's a further or perhaps fatal. Why you are waiting for fatal accidents? So please lighting का कुछ बंदोबस्त करो. That is what they are trying to say. The first part, it seemed that the council have promised to improve the lightings. Yes or no? It's a RC, it's a छोटा RC kind of thing.
दोबारा पढ़ो। If you read the line number 3, but unless the council is prepared to mark good its promise, unless तुम अपने करो जो तुमने प्रॉमिस किया था, they promised, obviously they promised, दिया यार सामने, it's given to you, there's a promised. So because this line is given the passage, is definitely true. Okay, look at number 1 was easy, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, क्वेश्चन में दिया था तो निकल गया। नंबर 2 ट्राई करो। Several accidents have taken so far because of the unsatisfactory lecture. Now this is not given directly, but it's implied. It's not definitely true, but it's probably true. अभी ये चीज़ आधे लोग लिख के आएंगे डेटा इनएडिक्वेट, वो उस टाइम पे दिया नहीं हुआ, दोनों डेटा इनएडिक्वेट किया, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम दिस टॉपिक, बिकॉज उसमें दिया है कि एक्सीडेंट होते हैं। इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट लाइन, एक एक्सीडेंट हुआ। इफ़ यू लुक एट द लास्ट लाइन, दे हैव सेड कि दे आर वेटिंग फॉर द टाइम व्हेन और ज़्यादा फेटल एक्सीडेंट हो, मतलब एक्सीडेंट होते हैं लेकिन फेटल नहीं होते अभी। दैट वाज द कीवर्ड, उसकी वजह से हो सकता है। बड़ा इतना आसान नहीं है जेबी जाना, मेहनत तो करना पड़ेगा जेबी जाने के लिए, ठीक है। सो वर्बल रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट एरिया, ट्रस्ट में इज मोर डिफिकल्ट देन विजुअल रीजनिंग। विजुअल रीजनिंग फिर भी आसान है यार, ये तो अभी क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसमें बड़े बड़े पैराग्राफ आएंगे जिसको पढ़ने में टेक यू मोर देन 1 मिनट। जो अपना लास्ट मॉक में था, बड़ा बड़ा पैराग्राफ एक क्वेश्चन, बड़ा बड़ा पैराग्राफ एक क्वेश्चन, छोड़ दो। वैसे पूरा पेपर करना नहीं है, जो चीज़ तुम्हें 45 सेकेंड से ज़्यादा ले रही है छोड़ दो, नहीं कर सकते सॉल्व, तुम करना भी नहीं है। नहीं तो 180 करना ना, बाकी 180 करो। You will leave a few questions, so that's why this 1/3, 5/3 will help you identify your areas where you are strong at. जेबी जाना भैया इतना भी आसान नहीं है। I know people जिसका 3 साल से 99% पे आ गया डिग्री गाड़ी। लास्ट 3 ईयर द गाय इज स्कोरिंग 99%। इस बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं आया, तो चौथी बार नारसी मोहन जी फाइनल ले लिया। एनमेट में 230, लेकिन जहाँ चाहिए था वहाँ स्कोर नहीं आता। जेबी कट ऑफ इज 99.92। सीटी में परसेंटाइल, सीटी विल गिव यू बोथ परसेंटाइल एंड स्कोर, ठीक है। ऑलराइट, विजुअल रीजनिंग जो सब लोग अभी के लिए छोड़ रहे हैं, बट इसमें काफ़ी क्वेश्चन इजी था। पहला पार्ट इजी था यार, 1 2 3 4 सम नंबर ऑफ पीपल आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, दैट कुड हैव बीन डन। इसका 73 तो बहुत ही था यार। 73 तो इफ आई लुक एट नंबर 73, बॉल सर्कल इज देयर 3 टाइम, उसके बाद गायब हो गया। क्रॉस इज देयर फॉर 3 टाइम, गायब हो गया। डी इज देयर फॉर 3 टाइम, तो अगली बार गायब हो जाएगा। बट स्क्वायर इज देयर फॉर, सो नंबर 3 इज योर ऑड मैन आउट, ठीक है यार। ये बीच बीच में से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे। एंड दिस क्वेश्चन यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ नंबर 72, चलेगा। यहाँ पे इसका मूवमेंट आ रहा है, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजिंग 2 3 4 5 6, तो ये सब किए जा सकते थे। दिस विल टेक सम प्रैक्टिस, और ये करना ही पड़ेगा यार। एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू डू दिस इन जनवरी फरवरी। तुम्हें अभी से शुरू करना पड़ेगा अगर इसमें मास्टरी करनी है तो, ठीक है। सो दिस पेज आई कुड हैव सॉल्व 2 to 3 क्वेश्चन जो इजी लगा, वो करने लायक था। इवन लास्ट क्वेश्चन वो इजी है, 75 वर डूएबल। दिस इक्वल टू इज हेयर, इक्वल टू बीच में आ गया, इक्वल टू इधर चला गया, इक्वल टू इज मूविंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और तीसरे के बाद गायब हो गया। सेम लॉजिक जो वहाँ था। 5 में से 2 क्वेश्चन है गॉट एक्जैक्टली सेम काइंड ऑफ लॉजिक, नंबर 73 एंड नंबर 75, ठीक है। ये सब क्वेश्चन करना पड़ेगा यार, ये सब इजी है। इट जस्ट बिकॉज यू हैव अ साइकोलॉजिकल बैरियर अगेंस्ट दिस टॉपिक, तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, वो निकालना पड़ेगा। इट माइट टेक यू 1000 क्वेश्चन, लगाओ, कोई टेंशन नहीं यार। एक चीज़ याद रखो यार, जो भी तुम्हारा स्कोर आएगा अगले 40 साल तक, जब तक तुम रिटायर नहीं होते तब तक तुम उस कॉलेज के नाम का खाने वाले हो, जो मैं आज खा रहा हूँ। आज मैं जेबी के नाम पे आज जो भी हूँ बिकॉज ऑफ जेबी है ना, तो अगले 40 साल तक जब तक मैं रिटायर नहीं होता, दैट ब्रांड इज़ गोइंग टू स्टिक टू मी।
एक बार मेहनत किया, हो गया, ठीक है। तो चाहे तुम्हें 1 साल लगे, 2 साल लगे, आई डोंट माइंड, फॉर दोज हु आर फ्रेशर और दोज हु आर विद लेस देन 1 ईयर और अप टू 2 ईयर्स का वर्क एक्स, आई डोंट माइंड यू वेटिंग फॉर 1 more ईयर। अगर लास्ट ईयर है तो ये साल तुम्हारा इस साल होगा, ठीक है। और दिस डिडक्शन का पेज इज द बेस्ट पार्ट, यू विल ऑलवेज हैव टू गेट 100% एक्यूरेसी। आई विल टेक वन वर्कशॉप ऑन दैट, अगेन टेल यू 10 टाइप ऑफ एरर्स जो नॉर्मली रॉन्ग करता है। इसमें तुम्हारा अगर कोई गलत हुआ क्वेश्चन 5 में से, तो क्लास में आना और खिड़की से कूद जाना बाहर। यू हैव टू स्कोर 100% एक्यूरेसी इन दिस एरिया। ये तो ईजी था यार, इसमें तो 2 स्टेटमेंट तो और ईजी हो गए। तो सो दिस ऑल दिस 5 क्वेश्चन वर ईजी, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, द मोमेंट यू यूज टिक एंड क्रॉस यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो टिक एंड क्रॉस इज आउट, यू हैव टू यूज वेन डायग्राम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसमें भी एक हाइब्रिड मॉडल है दैट आई विल टीच, you have to use that hybrid model to solve this question with 100% accuracy, ठीक है। So this 5 question I can promise you with 100% accuracy in next few weeks. Alright, this page was थोड़ा tough, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन थोड़े गंदे थे, बट ये क्वेश्चन इजी था यार। लास्ट के 3 क्वेश्चन स्टिल डुएबल था। इफ आई लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, 3 स्टार, 3 डॉट्स, 3 जेड, और पेपर में ऐसा ही आएगा, यू कांट रीड के है क्या इसमें। Yes, 10 क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, हैंड ड्रॉन। ये मैं समझ नहीं करना क्या है, ठीक है। तो 3 3 3 था यहाँ पे, देन इफ आई लेट्स मी मेक इट लार्ज, तो 3 स्टार्स, 3 डॉट्स एंड 3 जेड, देन स्टार बिकम 2, डॉट बिकम 2, जेड बिकम 2, देन स्टार बिकम 1, स्टार बिकम 0। तो हर चीज़ एक कम होती आ रही है, ठीक है। तो दैट वाज जेड जा रहा है लेकिन एस आ रहा है, हैंड ड्रॉन यार। वही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारा जेड है कि एस है, तुम्हें समझ नहीं आएगा वहाँ पे। अरे सिंबल है यार, सिंबल कुछ भी ड्रॉ करो। अब तुम बोलोगे ये कौन साइन है, तो कुछ भी हो सकता है फिर तो, ठीक है। तो दैट वाज थोड़ा इजी। ये भी सिंपल था, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, एंड देयर दिस डायरेक्शन इज चेंजिंग, दैट्स ऑल। इतना एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, जो आज अपन ने किया। तो यू कुड हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। सो विजुअल की 10 वर्कशॉप और वर्बल की 10 वर्कशॉप चाहिए यार तुम लोग को 10 में, ठीक है। आरसी वॉज लेंदी नो डाउट, थोड़ा था, बट क्वेश्चन आसान थे। दैट इज अ टिपिकल ऑफ CET, बट आई विल गिव यू सम स्ट्रेटजीज टुवर्ड्स लेटर ऑन दैट इन विच यू डोंट नीड टू रीड द फुल आरसी। You can save your time on that because reading में time जाएगा। But still, if there are 10 question, I think there were 10 question on this ना। 10 question मतलब 45 सेकेंड पर क्वेश्चन। तो अगर आपके पास इतना टाइम है तो आई डोंट माइंड रीडिंग द आरसी। 5 मिनट लगाओ, पढ़ के क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो आरसी वॉज डूएबल, बट आई वुड हैव डन टुवर्ड्स द एंड। और लास्ट का जिसने नहीं देखा कि लास्ट का ये 6 क्वेश्चन वॉज अगेन क्वाइट सिंपल। Contemporary, what is the opposite of that? Contemporary, modern, old. इससे सिंपल क्या मिलेगा तुमको क्वेश्चन है? ब्लूमिंग जो बढ़ रहा है, स्ट्राइविंग, ऑपोजिट डिग्रेडिंग, प्रीक्लूड क्या होता है? कैन यू नो द नियरेस्ट वर्ड ऑफ दैट? प्री एंड क्लूड, क्लूड का नियरेस्ट वर्ड है इंक्लूड, प्रीक्लूड पहले बाहर निकाल देना। तो प्रीक्लूड का ऑपोजिट। 3 इजी क्वेश्चन थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती, पब्लिक लास्ट तक पहुंच नहीं पाता। और लास्ट 3 सैंक्रिमोनियस। सैंक्रिमोनियस काइंड ऑफ अ होली, बट इट्स मोर ऑफ अ रॉन्ग बिलीफ और ब्लाइंड बिलीफ इन समथिंग, और फॉल्टी belief in something. Holy is not the right word here because holy is a good word, is a positive word, but sanctimonious is a negative word. It's a blind faith in something, and this is a blind principles, blind following of the principles. So closest word is this one. ये थोड़ा टेढ़ा था। Next one, एब्डिकेशन छोड़ देना।
अबैंडनमेंट, पेनिट्रेशन, पियर्सिंग। ठीक है, तो 6 में से 5 वर्ड आसान थे। दिस वॉज द स्कोरिंग एरिया। ठीक है, सो ओवरऑल वी आर स्टिल डूइंग अ कपल ऑफ इजी छोटे छोटे मॉक्स, देन ग्रेजुअली विल पिक अप द पेस एंड डू द बिगर मॉक। ठीक है, सो आइडियल अटेम्प्ट इन दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन अराउंड 30+ बिंदास अटेम्प्ट जाना चाहिए था, जो हो सकता था अगर आप ढंग से मैनेज किया जाता। एंड 20 to 30 के बीच में इफ़ यू आर स्कोरिंग इज़ अ गुड स्कोर एज ऑफ टुडे। जिसका स्कोर ज़्यादा आ रहा है पक्का उसने कैट दिया हुआ है। ठीक है, जिसने कैट नहीं दिया उसका स्कोर अभी इतना ही आएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, इवन इफ यू आर स्कोरिंग 150 मार्क्स, इफ एनीवन हु कॉल्स मी एट 150, सर मेरा ऑलरेडी 150 आ रहा है, आप मेरे को क्या सिखाओगे? अबे तुम्हारा 25% अभी भी नहीं आ रहा, इट इज ऑब्वियस स्कोप इम्प्रूवमेंट। यार लाइफ में यू हैव स्कोर्ड 75% मार्क्स। एक बार कभी आया था 10th में, 12th में, इंजीनियरिंग में 75%। एक बार तुम्हारा दोबारा अगर आ गया 75%, तुम्हारा अगले लाइफ टाइम का टेंशन खत्म हो जाएगा। वेयर यू लिव, what you eat, with whom you roam around will all change according to the college.